my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you want to taste me, you can try me. If you want to hate this, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you want to taste me,
था उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को कि किस बारे में था, और लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम थोड़ा सा अगर लुक के बारे में सबसे पहले बताएं। एक्चुअली ये एक ट्रैवल रिजॉर्ट लग्जरी ट्रैवल कलेक्शन मैंने डिज़ाइन किया है। सो ये पूरा गारमेंट लाइन है। इट वाज लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम, जैसे आप बीच साइड जाते हो या फिर मालदीव जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, व्हेन यू ट्रैवल आप अच्छे दिखते हो, आपको अच्छा फील होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरा पूरा कलेक्शन उसी पर्पज़ से, बीचेस माउंटेन्स उनको ध्यान में रख के, तो मेरे कलर कॉम्बिनेशन और मेरा पूरा वाइब मैंने उस हिसाब से क्रिएट किया ये वाली कलेक्शन के लिए। सो अगर आप आउट ऑफ इंडिया या कहीं पे भी इंडिया में भी जा रहे हो तो आप एक क्लासी लग्जूरियस ट्रैवल फील ले सकते हो विद योर आउटफिट्स, एंड वही मैंने दिमाग में रखा है। स्पेशली मैंने ये टर्बन लुक क्रिएट किया है। दिस टर्बन इज़ ऑल्सो डिज़ाइन बाय आवर लेबल। सो ये रेखा जी को ध्यान में रख के, रेखा मैम को ध्यान में रख के किया गया है, अगर आपको याद हो तो उनके पहले के टाइम में। सो कुछ पहले के टाइम से एंड अभी के टाइम को मर्ज करके मैंने इंडो वेस्टर्न लाइन क्लासिकली डिज़ाइन किया है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, कितने कंफर्टेबल है और आज का शूट का एक्सपीरियंस कैसा रहा फोटोशूट? बहुत अच्छा। यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट ज़ील कि वो क्लासिक और वेस्टर्न दोनों चीज़ों को ध्यान रख के आउटफिट और आपका लुक रेडी करती है। जैसे इस लुक की भी बात करें, सो इसमें अगर आप देखें तो क्लासिक टच भी है और बहुत ही वेस्टर्न टच भी है। एंड जैसे ज़ील ने बोला कि टर्बन लुक रेखा मैम को ध्यान में रख के किया गया है, एंड येस, और आपको पता है वो क्लासिक ब्यूटी आज तक है वो ब्यूटी। So and of course it's a vacation mode kind of costume which is very comfortable and बिल्कुल कॉस्ट्यूम में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी ऐसा हो रहा हो कि अनकंफर्टेबल हो रहा है या कुछ भी ऐसा है, नहीं, आप फुली कंफर्टेबली इंजॉय कर सकते हैं अपने वेकेशंस पे अपनी फैमिली के साथ। ऑफ कोर्स इतना आउटफिट क्लासी भी है, ब्यूटीफुल भी है और कंफर्टेबल भी है। सो आई लव हर आइडियाज़ की एक्सपेरिमेंट करती रहती है। इसमें आपको इंडियन और वेस्टर्न दोनों टच दिखेंगे। जैसे हमने रेखा मैम की टर्बन लुक की बात कर दी, तो अगर आपने सेक्स एंड द सिटी देखा हो तो उसमें जो लुक्स इंस्पायर करते हैं लोगों को, जी के आइडियाज़ कुछ वैसे ही रहते हैं। कॉस्ट्यूम्स की बात की जाए तो इंडो वेस्टर्न लुक जो आप बोल रही हैं, हम देख रहे हैं काफ़ी सारे कलर शेड्स भी आपने मिक्स किया है इसमें, तो क्या कहेंगे उसके बारे में कि कैसा वो क्या आइडिया था? ये मार्बल्स आपने देखे होंगे, बचपन में हम खेलते थे मार्बल्स, सो उससे इंस्पायर्ड ही हमने प्रिंट करवाया है पूरा। सो ये मार्बल प्रिंट बोलते हैं एक्चुअली इसको, तो हमने इसका नेम दिया है एंड उसी को ध्यान में इंस्पायर करके ये पूरा प्रिंटिंग करके यहाँ पे मैंने ड्रेप डाला है। सो नीचे से इट गिव्स इंडियन काइंड ऑफ लुक, जो इंडियन ड्रेप्स होते हैं। ऊपर से ये पूरा लेदर वायरिंग करके मैंने उसको एक वेस्टर्नाइज क्लासिक उसका ऊपर से अपर बॉडी में से लुक दे दिया है, बॉडी कॉर्सेट काइंड ऑफ लुक। एंड अगेन जैसा तो एक बहुत ही डिफरेंट मुझे एक जो कलेक्शन में डालना था वो मैंने किया है। या बट जैसे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जब भी हम बीच वेकेशंस के लिए जाते हैं या कुछ भी ऐसा, जैसे मालदीव्स हो गया या फिर कहीं भी अगर आप ऐसे जाते हैं, आपको ये सारे कलर्स दिखते हैं अपने आसपास इस नेचर में। यू नो यू गेट दिस ग्रीन, ब्लू, एमरल्ड ब्लू, तो ये सारे कलर का जो भी नेचर के कलर्स हैं वो सब मिक्सचर बना के उसने इस कॉस्ट्यूम में डाला है, विच इज़ वेरी प्रिटी एंड आई लव दिस कॉस्ट्यूम, आई लव दिस। पर्सनली आपका फैशन स्टेटमेंट जानना चाहिए, आपका फैशन स्टेटमेंट क्या है, कितने ब्रांड कॉन्शियस हैं? वेल मुझे स्टाइल करने वाली यही होती है अब फिलहाल। ज़ील ऋतु अग्रवाल का ब्रांड लेबल ही मैं पहनती हूँ अपने हर तरफ के इवेंट पर। सो शी इज़ द वन जो मुझे स्टाइलिंग करती है अब, और इसका स्टाइल सेंस आप लोगों को देख ही चुके हैं। फ्यूजन होता है वो मोस्टली क्लासिक और ट्रेडिशन और वेस्टर्न का। सो या शी स्टाइल्स मी, शी इज़ द वन। और भी बहुत सारे एक्टर्स को आपने डिज़ाइन किया, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, अगर थोड़ा सा बताया? मुझे एक्चुअली हर बार लाइक रिसेंटली अभी मैंने मीरा चोपड़ा के साथ हमारा एक उन्होंने मेरे गाउन्स में शूट किया एंड मुझे उनके भी लुक्स के लिए इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले। ऐसा सबने बोला इट्स लाइक कि वो अभी जैसे कैन्स में वो जाके आए, कैन फिल्म फेस्टिवल में, सो वहाँ के हिसाब से द वन शी वॉज वेयरिंग देयर, उसकी जगह लिटरली आई गॉट मैसेजेस ऑन माई पर्सनल DMs फ्रॉम ऑल द सेलिब्रिटीज़ एंड एवरीवन हु सर्व। आई फॉरवर्डेड ऑल द स्टाइलिस्ट एंड सेलिब्रिटीज़, so they literally told that this was something she should have worn there because that gave that kind of vibe. Plus I love to play with the fabric. मेरा एक वो ट्रेंड है, मैं एम्ब्रॉयडरी से ज़्यादा, सरफेस ऑर्नामेंटेशन से ज़्यादा मैं कपड़े से खेलना पसंद करती हूँ। सो मेरे जितने भी आपको गारमेंट्स दिखेंगे उसमें मैंने कुछ अलग कट दिया होगा, कुछ अलग ड्रेप दिया होगा,
उसको मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कपड़े से प्ले करके, ताकि वो एक अलग लुक आए, वो लगे कि कुछ आर्टिस्टिक है, कुछ डिज़ाइनर हमने पहना है, एंड प्लस वो वेटलेस भी हो जाता है। सो जब मैंने मीरा के साथ शूट किया, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। शी लव, लाइक हमने 3 लुक किए, डिफरेंट लुक। वन वॉज ब्लेजर लुक, जिसमें वो एकदम बोल्ड एंड क्लासी लुक हमने किया। एक हमने पूरा प्रिंसेस डायरीज़ को ध्यान में रख के प्रिंसेसी लुक किया था। सो अलग अलग इट्स लाइक एवरी टाइम मेरा हर डिज़ाइन ऐसा होता है कि आप मेरे हर डिज़ाइन में एक अलग लुक देख सकते हो, एक अलग पैटर्न देख सकते हो। कभी भी मेरा कोई भी डिज़ाइन रिपीटेटिव नहीं होता है, या आपको एक भी सिमिलर नहीं मिलेगा, बिकॉज मुझे चाहिए कि मैं जितने नए क्रिएटिव आइडियाज़ निकाल सकूँ और जितने नए डिज़ाइंस बना सकूँ और जितने नया मेरा काम, मेरे आइडियाज़ लोगों तक पहुँचा सकूँ। मैं चाहती हूँ हर जो भी मेरे पास आ रहा है ना, मेरा हर डिज़ाइन, एक डिज़ाइन का आउटफिट उसके पास है, दे शुड फील स्पेशल कि नहीं, ये ड्रेस मेरे पास है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू फॉर पीपल अराउंड। मैम पर्सनली आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में ऐसा कौन सी एक्ट्रेस है जो मतलब कि बहुत अच्छे फैशन सेंस रखती हैं या बहुत अच्छे फैशन के कपड़े पहनती हैं? वेल आई गेस इंडस्ट्री में जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, हम सब जितने भी हैं, इन पर्सनल लाइफ वी ट्राई कि हम जितना कंफर्टेबल और ऑन स्किन हम कंफर्टेबल रह सकें, हम वो कपड़े चूज़ करते हैं। बट व्हेन वी कम ऑन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, वी ऑलवेज स्टाइल, you know, we all have one designer with us and I have Zeel with me जो मुझे स्टाइल करती है। ऐसी हर सेलिब्रिटी का कोई ना कोई एक डिज़ाइनर रहता है जो उसके लिए कपड़े चूज़ करके लाता है। एंड यू नो समटाइम इट हैपन्स कि एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल पर्सन की जो स्टाइल स्टेटमेंट होती है वो शायद उतनी अच्छी या उतनी बुरी ना हो, बट जब एक डिज़ाइनर लेबल या एक डिज़ाइनर का दिमाग उसके साथ जुड़ जाता है, जब वो आपको रिप्रेजेंट करता है अपने डिज़ाइंस के साथ, तो कुछ अलग ही यू नो मैजिक क्रिएट होता है। एंड आई गेस मलाइका का डिज़ाइनर बहुत अच्छा है इंडस्ट्री में, एंड देयर आर मैनी अदर सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो, कियारा का बहुत अच्छा है। सो येस, इट्स ऑल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द डिज़ाइनर। जैसे मेरा डिज़ाइनर यहाँ खड़ा है मेरे साथ, इसका भी क्रिएटिव माइंड कुछ अलग सोचता है। एंड समटाइम्स यू नो वी ऑलवेज, जब भी हम इसके डिज़ाइन देखते हैं तो हमारे साथ ना कई बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे बोल रही थी कि हमने ये डिज़ाइन, इसने ऑलरेडी वो बना लिया होता है, वो डिज़ाइन ऑलरेडी इसने बनाए हुए होते हैं, वो कॉस्ट्यूम्स हम देख चुके होते हैं, बट वो ऑफकोर्स वो अभी तक किसी ने भी पहने नहीं है, वो मार्केट में नहीं आए हैं, बट वैसा सेम डिज़ाइन हम किसी और को पहना देख लेते हैं बाद में। एंड वाज लाइक जी तूने ये पहले ही सोच लिया था, ये पहले ही इसने बना के रखा हुआ था। यू नो ये हर चीज़ में इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश करेगी। शायद अभी हम जैसे अब बात कर रहे हैं, आपके कैमरा में से भी कुछ कलर्स दिखा के उसके लिए भी डिज़ाइन बना सकती है, ये वैसी है। सो शी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द इंस्पिरेशन फ्रॉम यू नो अराउंड द थिंग्स। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है। सब सेलिब्रिटीज़ का एक डिज़ाइनर होता है जो उन्हें डिज़ाइन करके देता है चीज़ें, उनकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करके देता है। थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले बताइए इस लुक के बारे में, कितनी कंफर्टेबल है, और थोड़ा सा अगर ज़ील के बारे में बताएं, उनकी स्टाइलिंग के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। मेरा नाम है शीन दास और आज जो है मैंने ज़ील अग्रवाल, मेरी प्यारी दोस्त का ड्रेस पहना हुआ है। इट्स डिज़ाइन बाय हर एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ट्रॉपिकल लुक लग रहा है मुझे देख के, तो लुक्स लाइक अभी हम लोग दोनों घूमने जाने वाले हैं। वेयर यू वांट टू गो? Maldives or maybe to Phuket. Yeah. Is it a beach Yeah. dress? Yeah. It looks like a beach dress also. It looks like you know somewhere. Yeah, Bali, an हाँ, exotic exotic vacation tropical. kind of. I think it's a holiday collection that you've made. इससे Yeah. पहले भी जो मैंने पहना था, it was a very holiday look. मैम आप बताइए थोड़ा सा कलेक्शन के बारे में और क्या इंस्पिरेशन थी इस आउटफिट के बारे में। As I love nature, so this is actually a tropical look, as she said, and this is inspired from the greens. जैसे आप print भी देख रहे होंगे, floral and leaves and वो सब बना हुआ है। So हमने वो ध्यान में रख के पूरा printing वैसा ही करवाया है, and according to that we have given it a very nice beachy kind of a look, like you're going for some exotic vacation. So that was in my mind while I was designing this collection, and I'm happy that I did that. Plus we have given it a very international kind of look. Of If course. you see the whole design from the upper body part, there's a bustier kind of look with a leather kind of wiring around it, but it's just for the show. So yeah, I kind of was very much inspired from the greens and with the look and everything. So yeah.
I think those pipes and all, they are complementing your body, you know. Exactly. Whatever your body type is, if there's something designed like this, it complements your body and you feel like you have some good figure. Yeah. Even if some of your clients might not have, you know, not everybody has True. a good body. Yeah. But if the clothes are made such that And they complement your body. perfect fit. Yes, of If you course. get the perfect fit, obviously the garment is going to look good. So you need a nice fit for a nice garment, a nice outlook. So you need. जैसे रोशनी जी से बात हुई थी पहले, हाँ, आपने बताया कि रोशनी जी का लुक जो है रेखा के लुक का हाँ इंस्पायर जी। किया हुआ है, तो इनका लुक के बारे में क्या बताएंगे आप? उनका लुक जो डिज़ाइन था वो हमारी इंडियन एक्ट्रेस रेखा जी को ध्यान में रख के किया गया था। इनका जो लुक है वो थोड़ा हॉलीवुड को ध्यान में, बिकॉज़ मुझे बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों से ही बहुत प्यार है। सो मैं इंस्पिरेशन लेती रहती हूँ सब सेलिब्रिटी से, सब एक्टर से, जैसे ट्रेंड में क्या चलता रहता है। सो जो ट्रेंड में चल रहा है मुझे उससे हट के करना है, जो ऑलरेडी कोई कर रहा है मुझे वो नहीं करना है। सो आई ऑलवेज़ कीप दिस इन माइंड कि मेरे जो भी डिज़ाइंस हो वो एकदम अलग हो, एकदम हटके हो। जो भी मेरा कलेक्शन प्रेफर कर रहा है, जो भी एक्टर प्रेफर कर रहा है या एक नॉर्मल इंसान भी प्रेफर कर रहा है, सो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आए और वो स्पेशल फील करे कि नो वी आर वेयरिंग समथिंग डिफरेंट और हम कुछ अलग दिख रहे हैं आज। सो वो माइंड में रहता है। शीन जी की हाइट भी अच्छी है, तो बहुत। हाउस वर्किंग विथ हर एंड स्टाइलिंग हर, कैसा एक्सपीरियंस? फिलहाल हम दोनों, मैं लग रही हूँ जया बच्चन एंड ये लग रहे हैं अमिताभ बच्चन। सो जया मैम एंड अमिताभ सर जैसा हम लोग का पेयरिंग लग रहा है अभी हाइट We वाइज। also made a reel right now. Exactly. She's like setting my dress up and you know doing a thing and वो camera दूर जाता है and I'm like, hi baby, how are you? She's like my younger sister. She is so talented. मतलब ज़ील की उम्र में इतना ज़्यादा टैलेंट, और अभी से मतलब शी इज़ डिज़ाइनिंग फॉर स्टार्स, फॉर सेलिब्रिटीज़, फॉर पीपल, जनरल पीपल. इट्स अमेजिंग एंड हर डिज़ाइंस आर फैबुलस. आई रियली लव हर डिज़ाइनिंग. किस तरह की स्टाइल स्टेटमेंट को फॉलो करना आप पसंद करती है? जिस तरीके की ज़ील मुझे बता दे कि शीन ऐसा पहनना. मैं ज़ील को कभी कभी फ़ोन करती हूँ कि ज़ील भाई मेरा इवेंट है, हेल्प मी आउट. तो अभी तो गुजरात में है और जब भी बॉम्बे आती है तो मैं डेफिनेटली मिलती हूँ और अदरवाइज़ भी पूछती ही रहती हूँ, क्योंकि इसको पता है कि अभी स्टाइल मतलब अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, किस तरीके के कपड़े चल रहे हैं. तो आप रियल लाइफ में कितनी ब्रांड कॉन्शियस हैं? बिल्कुल नहीं हूँ. इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फैशन डिज़ाइनर्स की, क्योंकि क्या होता है, माई फैशन सेंस इज़ नॉट दैट ग्रेट. इफ़ समबडी टेल्स मी कि शीनी अच्छा लग रहा है पहन लो, तो मैं पहन लेती हूँ. बट एक्चुअली क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या सूट कर रहा है आपकी बॉडी टाइप को, ये सब चीज़ें जो है ज़ील जैसे डिज़ाइनर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं. तो व्हेन एवर सम क्लाइंट कम्स टू हर, इसका इतना ज़्यादा डेडिकेशन है कि उस क्लाइंट को कंफर्ट प्लस डिज़ाइनिंग प्लस उसको क्या पसंद आ रहा है सब कुछ दिमाग में रख के ये खुद डिज़ाइन करती है ड्रेस और बनवाती है स्पेशली उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, और उसको दूसरा कोई पीस नहीं होता, यू नो. सो वो आपके दिल के बहुत करीब हो जाता है और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं. कोई भी ब्रांड जो है, आप किसी भी ब्रांड से खरीदते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ओह सामने वाले इंसान ने भी मेरे जैसा ही कपड़ा पहना है. हियर यू कांट गो रॉन्ग, स्पेशली फॉर द हॉलीडेज. या यू डोंट वांट टू रिपीट कि अरे किसी ने पहना हुआ है ऑलरेडी, आपने भी पहना हुआ है सेम चीज़. फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो बहुत अच्छे से कैरी आउट करती है अपने आप? मुझे दीपिका पादुकोण उनका फैशन सेंस बहुत अच्छा लगता है. जी मैम, आपसे जानना चाहूँगा, रेनी सीज़न आ गई है तो क्या टिप्स शेयर करना चाहेंगे जो व्यूवर्स हैं हमारे उनके लिए? रेनी सीज़न में जैसा कि हम जानते हैं कि बारिश रहती है, सो डोंट वेयर वाइट. सबसे पहला टिप, बिकॉज़ वाइट ख़राब होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं. बट सेकेंड, मैं ये भी मानती हूँ कि इस सीज़न में मॉस्किटोज़ एंड ऑल काफ़ी रहते हैं. सो आप ऐसा फैशन भी चूज़ कर सकते हैं. आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप शॉर्ट टर्म लाइक शॉर्ट ड्रेसेस पहन रहे हो तो ही अच्छे लगते हो, वन शोल्डर ट्यूब स्टाइल्स. आई बिलीव इन क्लासिक. आई थिंक कि विंटेज फैशन जो है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जिससे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ पुराने टाइम के फ़ैशन से, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप उसको थोड़ा सा ट्रेंड में ले आएँ और करंट ट्रेंड के साथ थोड़ा विंटेज वाइब्स रेनी सीज़न में मिक्स करके पहने तो वो बहुत ही क्लासी लगेगा, बहुत एलिगेंट लगेगा. सो मेरा ये माइंड में रहता है कि फ़ैशन शुड बी समथिंग दैट इज़ टाइमलेस.
जो हमेशा एवरग्रीन रहे, एंड आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। सिंगल टोन कलर्स पहनिए, न्यूट्रल कलर्स पहनिए, पेस्टल्स पहनिए। आई थिंक रेनी सीज़न है तो पेस्टल्स बहुत अच्छे से उभर के बाहर आएंगे एंड आपकी स्किन को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये ऐसा कलर पैलेट होता है जो हर स्किन टाइप पे जाता है, प्लस आपके बॉडी टाइप पे क्या सूट कर रहा है उस हिसाब से कपड़े पहनिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर चीज़ आपके बॉडी के हिसाब से सूट करेगी। सो किसी को देख के आप वो पहनो, वो मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करती। ऑलवेज ट्राई टू वेयर समथिंग दैट सूट्स योर बॉडी, योर स्टाइल, and in which you feel confident and you feel good about yourself. So always go for those kind of outfits. Sheen, any of your upcoming project, lastly, if you'd like to share with us? There's this project coming up called Tanav, Applause Production House का है. It is going to release soon. Release date अभी आई नहीं है, but it is going to be on Sony Live. Please do watch. Thank you, ma'am. Thank you so much and all the best.